Good morning, student. Our today topic is the uncertainty principle and quantum physics. तो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि लाइट proposes the wave particle duality. Electron are deflected particle duality. Electron are deflected by the electric field and the magnetic field, showing that these are particles of definite mass, momentum, and energy. Davidson and German electron diffraction experiments show the clearly that an electron can behave as well as wave, and the de Broglie wave relation lambda is equal to h upon p, where p is equal to mb is momentum of particle of mass and velocity v. If ek is the kinetic energy of the particle, then ek is equal to p square by 2m, and the de Broglie wave length in terms of the energy ek is given by lambda is equal to h अपॉन में अंडर रूट टू एम ई के, बिकॉज पी की जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट टू एम ई के. द एग्जिस्टेंस ऑफ द डी ब्रोगली wave was experimentally demonstrated in 1927, and the wave particle duality shown by them provide the starting point for the Schrödinger successful development of the quantum physics. Schrödinger then postulate that the moving particle is not associated with a single wave train but moving body corresponding to a wave packet. It is impossible to locate the exact position of the particle at any given time, because although the particle is somewhere within the wave packet, it is difficult to know where exactly the particle is and what exactly it is velocity at the momentum. The best known consequence of the wave particle duality is the uncertainty principle. So we will discuss the uncertainty principle first and then Schrödinger wave equation. Now the article is the Heisenberg uncertainty principle. In the classical physics, one can find the position and momentum of the moving particle easily if their initial values are known. In the quantum physics, the particle is described in terms of the wave packet. The particle is likely to found anywhere within the wave packet moving with the group velocity. So it is impossible to know where exactly the particle is and what exactly in its momentum at any instant. When particle momentum is larger, then the lambda is equal to h upon me p. P is the momentum and is very small, and so wall wave packet is also small. So probability of locating the particle at a point increase, but since the velocity spread of such a wave packet is large, the momentum p is equal to mb, the particle becomes indeterminate. So similarly, for the particle with lesser momentum, the associated wave packet is larger. Then the momentum spread is small, and momentum can be fixed fairly accurately, but there becomes large uncertainty is pos- uh, in position. So conclude that the certainty about the position involve uncertainty in momentum and the vice versa. Heisenberg realized the consequence of the wave mechanics first and expressed it mathematical by the following equation known as the uncertainty principle. तो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी दैट इज ग्रेटर और इक्वल एच क्रॉस, वेयर एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज द एच क्रॉस इज इक्वल टू एच बाई टू पाई. दैट इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन, वेयर delta x and delta p are the uncertainties involved in the position of the measurement of the position and the momentum of the particle, and h is the Planck constant.
According to the According to the definition of the Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to specify the precisely and the simultaneously the values of the momentum and the position of the particle. Also, the equation first can be defined as the product of the uncertainty delta x in the position of an object and uncertainty of delta p in its momentum simultaneously is equal to or a greater than h cross. The uncertainty principle can be started in terms of the energy E of the particle and the time t, which is measured. The uncertainty relation of this pair of variables is, that is, delta E delta t, that is the product of the energy and the time, greater or equal to the h cross. That equation is second equation, where delta E and delta t are the uncertainties in energy and time respectively. According to the time energy relation, if the time for which the system remains in a given energy state is short, then energy will not well defined, and for a state with large lifetime, the energy will more well defined. So if electrons remains in the excited state for a time interval delta t, then delta t will be the error in the measurement of the time. The error in the measurement of energy cannot be less than delta E is equal to h cross by delta t. Now, next topic is the experimental illustrations of the uncertainty principles. तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली द वैलिडिटी ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मे बी इलस्ट्रेटेड very well by the following hypothetical experiments. Such experiments are imaginary experiment and which not the violate any fundamental law of nature but which cannot be performed in practice. Now the first is, that is the diffraction of electron beam at a single slit. तो इसमें हम क्या करें, कंसिडर द पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए single narrow slit of width delta y. It produces the diffraction pattern on the screen shown in the figure, and the equation growing diffraction at a narrow single slit is a sin theta is equal to n lambda. तो वेयर ए हमारे पास, ये हम फिगर की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास फिगर है, दैट इज़ द फिगर. इस फिगर में हमारे पास क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ए स्लिट. तो हमारे पास जो डेल्टा वाई है वो स्लिट की वैल्यू है. इनके बीच में हम इसको शो कर रहे हैं, सामने हमारे पास स्क्रीन है, लाइट हमारी ये क्या है, स्लिट से पास होगी. तो ए हमारे पास क्या है, दैट इज़ द स्लिट विड्थ एंड डेल्टा वाई इन आवर केस. तो थीटा हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, डिफ्रैक्शन एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई यानी कि ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ डेल्टा वाई. तो हमारे जो इक्वेशन थी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ द delta y sin theta is equal to lambda, that is the equation first, and the electron produce the diffraction pattern pass through the slit, but we cannot say definitely at a point on the slit since the uncertainty in determining the position of the electron is equal to the width of delta y of the slit. So from equation first से हमारे पास क्या आ जाएगा, delta y is equal to lambda by sine theta. Now we have to calculate the uncertainty, the measurement of momentum. So electrons are moving along the x-axis and so they have no component along the y-axis. But after the diffraction at the narrow slit, they are diffracted through an angle theta. So their momentum component along y-axis lies between the p sin theta and the नेगेटिव पाई साइन थीटा. तो ये हमारे पास जो ऊपर फिगर है, हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, यानी कि जो वाई एक्सिस के अलोंग. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वाई कंपोनेंट इज, दैट इज द डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू
2p साइन थीटा, तो उसको किसके इक्वल, दैट इज 2h अपॉन में लैम्डा, p की वैल्यू हमने पुट कर दी h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट द डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 2h, यानी कि हमने दो वैल्यूज़ हमने दोनों इक्वेशन से लिए तो वहाँ से सॉल्व किया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई, डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू एच। That means the product of the uncertainty in position and the momentum of the order of the Planck constant h. Now the second is finding the position of the particle by microscope. Now consider the case of locating the position of the particle, say electron, within the view of microscope. तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर है वो हमारे पास ये फिगर है इसकी माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट दैट कैन बी जस्ट रिजॉल्व बाय द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज द डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 साइन थीटा, where lambda is the wavelength of the light and the theta is the vertical angle of cone of light, and collected by the microscope shown in the figure, and the uncertainty is determining the position of particle. To view the electron, it is necessary that at least one photon must scatter inside the microscope after the striking the electron. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट जो फोटोन है वो फॉल होगा पार्टिकल के फॉर्म में, और फिर वो हमारे पास क्या है माइक्रोस्कोप में इनसाइड द माइक्रोस्कोप एंड स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियल जो मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन होगा वो हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा। आफ्टर द स्कैटरिंग, जब स्कैटरिंग होगी तो इट कैन एंटर द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप एनीवेयर विद द एंगल ऑफ 2 थीटा, यानी कि वो हाफ हो जाएगा 2 थीटा। द एक्स एक्सिस ऑफ द मोमेंटम इज पी एक्स मे बी लाई between the p sin theta and the minus p sin theta, so momentum is conserved in the collision of the uncertainty in the x component of the momentum is given by, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, that is delta px is equal to p sin theta minus sin theta is equal to 2p sin theta। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा px is equal to 2h by lambda sin theta। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 साइन थीटा इंटू 2h लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू h। तो इट मीन्स यहाँ से भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड द मोमेंटम इज द ऑर्डर ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट h। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एप्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हमारे पास क्या है, पेपर में भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इसमें। दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट एंड विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन क्लासिकली, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कैन बी डिस्कस बिलो। नाउ द फर्स्ट इज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ये जो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है। वी आल्सो नो द न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का साइज हमारे पास क्या है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14 मीटर, -14 meter. If any particle is to be exist in the nucleus, then the uncertainty in the position of the particle in the nucleus is, तो it means डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर -14 मीटर। Therefore the uncertainty in the momentum of the particle in the nucleus will be, तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एच क्रॉस की वैल्यू पुट करते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34, डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पर कितना है, दैट इज़ द 10 की पावर -14, और एच क्रॉस की अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास सारी जो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो पी एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोमेंटम ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल इन द न्यूक्लियस मस्ट बी एट लीस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, दैट इज p इज इक्वल टू
जो हमारे पास वैल्यू है P इज इक्वल टू 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज गिवन बाय। तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, दैट इज E इज इक्वल टू अंडर रूट एम नोट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अगर हम इसमें एम नोट की, सी की, पी की अगर हम सभी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे हमारे पास एम नोट यानी कि रेस्ट मास है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसी तरीके से लाइट ऑफ एनर्जी 3 इंटू 10⁸ हो जाएगी। पी हम यहाँ पे कितना पुट कर सकते हैं 10⁻⁻20 हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो जब हम सारी वैल्यूज पुट करें और इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एनर्जी है ई की वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻12 जूल। अगर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो 10 MeV हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो इफ़ द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट in the nucleus, then the being emitted the electron should have energy of the order of 10 MeV. It means the electrons emitted from the nucleus during the beta decay have energy of the order of 3 MeV only. So the electrons cannot exist in the nucleus. Now the सेकेंड हमारे पास एप्लीकेशन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन ऑर्बिट। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। सो द corresponding uncertainty in the momentum is delta p is equal to h cross by delta x is equal to h cross by 2r. So therefore the minimum value of the momentum of electron in its orbit, that is r is equal to 10⁻⁻10 meter. So p is equal to delta p is equal to h cross by 2r. The kinetic energy of the electron is given by, that is k is equal to p square upon 2 m naught. तो यहाँ से हम p की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज h क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 8m0r²। और यहाँ जब हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 0.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The potential energy of the electron in the electrostatic field of the nucleus is V is equal to ZE माइनस ZE स्क्वेयर अपॉन में 4πε0r। तो ये कैलकुलेट कर कर हमारे पास जो V है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -14.4 ZeV, यानी कि 14.4 Z इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर Z यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज द एटॉमिक नंबर of the atom. So therefore total energy of an electron in the its orbit in case of hydrogen is, so E is equal to k plus V, that value is potential and the kinetic energy, that is 0.96 minus 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू के लिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू minus 13.44 electron volt. The binding energy of the electron in the hydrogen is minus 13.6 electron volt, which is very close to the binding energy derived from the uncertainty principle. Now third application is हमारे पास क्या है, finite width of the spectral lines. So we also know that the delta E dot delta T is equal to h cross. So the lifetime of electron in an excited state is 10⁻⁻8 second. The energy level of an atom must have a finite width given by delta E is equal to h cross by delta T. So the excited levels must have a finite energy. Spread of energy or a energy uncertainty is given by, तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे एच क्रॉस और इनकी वैल्यू पुट करें तो और कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 1.054 इंटू 10⁻26 जूल। ई इज इक्वल टू एच न्यू ऑल्सो नो दैट। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको अनसर्टेनिटी फ्रीक्वेंसी में हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू
एच डेल्टा न्यू। तो यहाँ से डेल्टा न्यू निकालें तो क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन में एच इज इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.054 इंटू 10⁻26 और एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1.59 इंटू 10⁻7 हर्ट्स। सो द ई स्पेक्ट्रल लाइन्स हैज़ this much finite uncertainty in frequency measurement. So the spectral lines can never be very sharp and must have natural finite width. Now last application हमारे पास है that is the radius of the Bohr first orbit. तो हमारे पास जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो हमारे पास ये है that is the radius of the Bohr first orbit. Let the delta x and delta p are the uncertainties in the position and the momentum of the electron in first order. Then we have delta x delta p is equal to h cross. तो यहाँ से delta p की वैल्यू क्या होगी h cross अपॉन में delta x. Uncertainty in kinetic energy of the electron is delta k is equal to half m delta v square. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं delta p square अपॉन में 2m. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा पी, यानी कि हम मोमेंटम की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल्टा एक्स का स्क्वायर. तो अनसर्टेनिटी ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई. अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एक्स. दैट इज इक्वेशन सेकेंड. अनसर्टेनिटी इन टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एक्स. ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड. अगर हम मैक्सिमा या मिनिमम अगर हमें कोई चीज़ निकालनी है तो उसके लिए हम क्या है वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करते हैं. तो अनसर्टेनिटी इन द टोटल एनर्जी वुड बी मिनिमम इफ डी डिफ्रेंसिएशन में यानी कि डेल्टा ई अपॉन में डी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 4. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ अगर हम इसको जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी दैट इज़ द एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में एम डेल्टा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में एम जेड ई स्क्वायर. द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ये क्या आ जाएगी हमारे पास आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर. ये हमारे पास 6 इक्वेशन है और ये एक्सप्रेशन किसके लिए है टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट. इसी तरीके से 2 एग्जांपल्स मैंने साथ में दिए हैं, इन पे न्यूमेरिकल भी आते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पीड ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 0.01%. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हमारे पास कितनी 0.01 इंटू अपॉन में 100 इंटू 4 इंटू 10⁵. सॉल्व किया तो 4 मीटर पर सेकेंड. तो इसी तरीके से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी. तो डेल्टा पी को हमने किया 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 40 सॉल्व कर दिया तो 3.644 इंटू 10⁻29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच. तो यहाँ से पोजीशन निकालनी है तो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन में डेल्टा पी. हमने वैल्यूज पुट कर दी और कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है कि डिड्यूस द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एंड द टाइम फॉर पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. तो हम इसको मोमेंटम में चेंज कर लेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन में 2m. अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू
2p डेल्टा पी अपॉन में 2m p डेल्टा पी m। तो सॉल्व करा तो यहाँ से हमारे पास क्या है v डेल्टा p। अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो v इजिकल टू डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डेल्टा e इजिकल टू डेल्टा x डेल्टा t डेल्टा p। इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास सोल्व होकर क्या आ गया, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये हमारे पास यानी कि एच क्रॉस, यानी कि ये जो रिलेशन था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डेल्टा ई डॉट यानी कि मल्टीप्लाई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हमारे बीच में से कोई भी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है इसमें, या कोई भी हमारे पास क्या है इसका एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है पेपर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।